Hello everyone. Today we are going to discuss power sharing. Power sharing, it means the distribution of power among the government or you can say among the organs of the government. इसका मतलब यहाँ पर ये है when it comes to a legislature, executive and judiciary, these three are considered as an organ of the government. As you know very well, legislature is a law making body. लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इसे एग्जीक्यूट करता है एंड जुडिशरी हमारे लॉज को, हमारे राइट्स को, इनको प्रोटेक्ट करता है. पावर शेयरिंग बेसिकली हमें हेल्प करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी रहे. पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग लेवल पे भी डिस्टिंग्विश की जा सकती है, जैसे यूनियन, स्टेट एंड लोकल वन. यू नो वेरी वेल देयर इज अ 3-tier सिस्टम in India, that is union, state and local. This is also known as a power sharing method, or you can say power sharing is basically a agreed policy between political parties, or you can say it is a coalition to share responsibility for decision making and for the political action. So all in one, we have to know that power sharing, first of all, it means a distribution of power. You can say because the word itself said power share, it means power को share करना यानी power को distribute करना. ये किन किन organs में होता है? That is the legislative, executive and judiciary. और ये political order के यानी you can say कि ये stability provide करता है political system को. इसके साथ साथ में ये union, स्टेट और लोकल लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. और आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये एक ऐसी पॉलिसी प्ले करता है, और यू कैन से इन पावर शेयरिंग इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल सो दैट अ गवर्नमेंट कैन बी मेड विद अ कोलिशन. कोलिशन मीन्स दैट इज अ व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी इन एनी इलेक्शन. जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, अलग अलग पार्टीज कंबाइन करके जब एक पार्टी बनाती है, दैट मीन्स अ कोलिशन गवर्नमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक अंडर दिस चैप्टर्स. फर्स्ट यू हैव टू नो the terminology, what the terms you need to know. Second, the story of the Belgium and the Sri Lanka and the majoritarianism in Sri Lanka. In this chapter you are going to discuss about the two countries, that is the Belgium and Sri Lanka, accommodation, why power sharing is desirable and forms of power. Now we come to know though that terms you need to know. First one, that is the ethnic. Ethnic means it's a social division based on a shared culture. As you know very well, we live in a social society. That means we are a social animal and we share so many cultures. You know very well, in society there is a number of division and we share number of culture. When we live in a society where culture is shared between people and the communities, that is ethnic. Majoritism, it means the majority community, it will rule over a country by disregarding the wishes and the needs of the majority. यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो कंट्री के ऊपर रूल करती है माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करके. कम टू द सिविल वॉर. सिविल वॉर ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो दो ग्रुप्स के बीच में होता है, और आप ये कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि वो एक वॉर की तरह रिफ्लेक्ट होता है. उसके अंदर उनके आइडियोलॉजीज रिफ्लेक्ट्स भी होते हैं, उसके अंदर उनका कम्युनिटी रिफ्लेक्ट भी होता है. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिससे वो डील करते हैं. इसी के कारण उसको सिविल वॉर कहा जाता है. प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि प्रूडेंस के ऊपर या एक केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस के ऊपर बेस्ड होता है. ये डिसीजंस जो होते हैं वो बेसिकली डिसीजंस होते हैं प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन पे. आप इसका एक टर्म यूज़ कर सकते हैं कि प्रूडेंशियल्स जो है वो एक कैलकुलेशन है, और आप ये कह सकते हैं इसके अंदर जितने भी डिसीजंस बनाए जाते हैं वो मॉरल कंसिडरेशन के बेसिस पे बनाए जाएंगे. नेक्स्ट, दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट. बेसिकली द टर्म इटसेल्फ सेज कम्युनिटी. It means a representation of a particular community. It means a elected body by the people to particular language, particular culture and any particular property. वो कहीं पर भी रहें, कैसे भी रहें, अगर कोई भी कम्युनिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या कल्चर को फॉलो करती है और उसी के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट बनाती है, दैट मीन्स अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. सिविल वॉर. अगेन सिविल वॉर
it's a war between the two communities which is living in the same country, and you can say it can be arose in a different groups, and before we earlier taught that is it can be arose in a different communities also. Checks and balance. Checks and balance, as you know the term, to check and balance between the system. इट इज़ बेसिकली प्रिवेल्ड इन द यूएसए, ये यूएसए में आपको मिलेगा। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, विच ऑर्गन्स, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर आए रखते हैं, और आप ये कह सकते हैं ये तीनों ऑर्गन्स जो है एक दूसरे को चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे की पावर्स को लिमिट करते हैं। सो इट मीन्स अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। दैट इज द लास्ट टर्म, दैट इज द कोएलिशन गवर्नमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन देयर इज़ नो क्लियर मेजॉरिटी। आप जब भी देखेंगे इलेक्शंस के समय में एक समय आता है जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है। जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो है वो छोटे पार्टीज़ को इन्वॉल्व करके एक मिली जुली सरकार बनाती है। दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी अलग अलग पार्टीज़ को मर्ज करके जब एक पार्टी बनाया जाता है रूल करने के लिए, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो जितनी भी पॉपुलेशन है या जितने भी मेंबर हैं पर्टिकुलर स्टेट में, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ पीपल है, यानी जनता का शासन है। फेडरल गवर्नमेंट, एज आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में भी जाना होगा कि इंडिया में देयर इज़ अ फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर दैट इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट। इट मीन्स देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर एंटायर कंपनी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। दैट मीन्स देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द 3 tier, और यू कैन से देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेजिस्लेचर, अभी मैंने बताया था कि लॉ मेकिंग बॉडी है, और ये एक ऐसी असेंबली है जिसको पावर होती है कोई भी लॉज को पास करने के लिए, अमेंड करने के लिए, या उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है, जो सिटीजन्स को अपने पार्टिसिपेशन, एक्वेरेंस उस सिस्टम के अंदर वो एक्वायर करती है। और आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर मिनिमम से लेके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है पॉपुलेशन का, दैट गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज द स्टोरी ऑफ द बेल्जियम। अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ कि बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग मैंडेटरी हो गई। बेल्जियम जो है वो बेसिकली एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमारे हरियाणा के अंदर जो पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन जो है आपको बेल्जियम में मिलेगी, जिसके अंदर 59% जो है वो डच लैंग्वेज यूज़ करते थे, 40% जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे, एंड देयर इज़ ओनली अबाउट 1% ऑफ द पीपल who speak German language. So this is the distribution of the Belgium in the Europe. That is the most speaking language is the Dutch, then after the French, and the least is the German. Look at this map. अगर हम इस मैप को देखेंगे, it is distributed according to the language. ब्रुसेल्स जो कि ये है, ये बेल्जियम का कैपिटल माना जाता है। वेल्सन्स जो है वो एक पार्ट है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। फ्लेमिश जो है ये डच स्पीकिंग है, और ये जो छोटा सा एरिया है दिस वन इज द जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग वहाँ पर ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, हमने देखा है दैट इज़ अ 59% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू अ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। वो कंपैरेटिवली रिच और पावरफुल थी, इसीलिए उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए
और एजुकेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे। कैन यू सी दिस कि देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेनिफिट्स वहाँ पर मिलते थे। इस वजह से, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द benefit to the one particular language, it creates a tension between the Dutch speaking and the French speaking community in the year 1915 and the 1916.